મહાશિવરાત્રિનો મેળો ભવનાથ જૂનાગઢ ભાગ 3 વિવિધ અખાડા વિશે વિસ્તૃત માહિતી। જૂનાગઢના મહાશિવરાત્રિ મેળાઓનું મુખ્ય આકર્ષણ અને સાધુ સમાજના સૈનિક ગણાતા દિગંબર સાધુઓ વિવિધ પ્રકારના પરંપરાગત હથિયારો ચલાવવામાં નિપુણ હોય છે। આજે પણ અહીંના અખાડાઓમાં પરંપરાગત હથિયારોનો મોટો સંગ્રહ જોવા મળે છે। હવે ભલે યુદ્ધ ન થતા હોય, પરંતુ જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિના દિવસે નીકળતા સરઘસમાં નાગા સાધુઓ આ હથિયારો સાથે ભાગ લે છે અને વિવિધ કરતબ બતાવે છે। દિગંબર સાધુઓ કે નાગા સાધુઓના પંથની શરૂઆત ધર્મની રક્ષા માટે થઈ હતી તે વાત થોડા ઘણા અંશે જાણીતી છે। આ સાધુઓના અખાડામાં આજે પણ વિવિધ પ્રકારના પરંપરાગત હથિયારો જોવા મળે છે। આ હથિયારોમાં તલવાર, ભાલા, બરછી, જમૈયા, ફરસી, ત્રિશૂલ અને પટ્ટાનો સમાવેશ થાય છે। આજથી જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિનો મેળો શરૂ થશે, જેમાં દેશના વિવિધ સાધુ સંપ્રદાયના સાધુઓ અને દિગંબર સાધુઓ આવશે। મહાશિવરાત્રિના દિવસે નીકળતા સરઘસ કે રવેડીમાં આ હથિયારોના વિવિધ દાવ અને કરતબ પણ દેખાડવામાં આવે છે। આ હથિયારોને દિગંબર સાધુઓ પવિત્ર માનતા હોવાથી હથિયારો જમીનને સ્પર્શ ન કરે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। હાલ તો લડાઈ કે યુદ્ધ થતા ન હોવાથી આ હથિયારોનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવતો, પરંતુ પરંપરાના ભાગરૂપે હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાની તાલીમ દરેક નાગા સાધુઓને આપવામાં આવે છે। લોકકથાઓ અને ઇતિહાસમાં જેનો ઉલ્લેખ છે તે જમૈયા નામનું હથિયાર ચલાવવામાં આ સાધુઓ કુશળ હોય છે। આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારની ફરસી અને ત્રિશૂલનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની તાલીમ પણ સાધુઓને આપવામાં આવે છે। જૂનાગઢમાં આવેલા વિવિધ અખાડાઓમાં આ હથિયારોનો મોટો સંગ્રહ જોઈ શકાય છે। શિરોહી, ખુરાસણ ડાબસા, ખુરાસણ કલમવાળી, લાલુવાઈ, સુલેમાની, વટણી અને કલમી જેવી લગભગ 10 તલવારો આ સંગ્રહમાં જોવા મળે છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની જાણ પણ સાધુઓને હોય છે। હથેળીમાં ઊભી રહી શકે તેવી તલવારને સૌથી ઊંચા સ્તરની તલવાર માનવામાં આવે છે। અખાડાના આ હથિયારો વઢાણા નામનો એક સમુદાય તૈયાર કરે છે। વઢાણા સમુદાયની બહુલક વસ્તી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા આસપાસના વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે। જો કે આ જ્ઞાતિની થોડી ઘણી વસ્તી કચ્છ અને જૂનાગઢમાં પણ જોવા મળે છે। આ સાધુઓના મુખ્ય 13 અખાડાઓ છે। સાધુઓ તેમના અખાડા અને સંપ્રદાય પ્રમાણે તિલક કરે છે। આ તિલકના આધારે સાધુઓ એકબીજાને ઓળખે છે। એક સમયે નાગા સાધુઓ રજવાડાઓ તરફથી લડાઈઓ પણ લડતા હતા। આઝાદી બાદ પણ સાધુઓ વિરુદ્ધ કોઈ બળનો પ્રયોગ થાય તો આ સાધુઓ મરણિયા થઈને લડતા હતા। ઘાતક હથિયાર ન હોય તો પણ લાઠીદાવથી પરાસ્ત કરવાની આવડત પણ આ સાધુઓ પાસે હોય છે। સંપ્રદાય અનુસારના મુખ્ય 14 અખાડા। શૈવપંથી અખાડા
पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोदिनी आनंद अखाड़ा, पंचदशनाम जूना अखाड़ा, पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। वैष्णवपंथी अखाड़ा, दिगंबर अणि अखाड़ा, निर्वाणी अणि अखाड़ा, पंच निर्मोही अणि अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा। उल्लेखनीय छे कि गिरनारनी तळेटीमां विविध पंथना साधुओना 6 अखाड़ा छे। अखाड़ा एटले के जे ते पंथना साधुओनी जग्या। भवनाथ तळेटीमां शिवशंभु पंथ दशनाम अखाड़ा, शिवशंभु पंथ दशनाम आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, अटल अखाड़ा अने उदासी अखाड़ा अस्तित्व धरावे छे। ए पैकीना उदासी अखाड़ाने बाद करता बाकीना तमाम पंथ शैवपंथी छे अने बधा दिगंबर पंथी साधुओ छे। आ तमाम अखाड़ाओमां जे ते पंथना केटलाक साधुओ कायमी निवास करे छे अने पंथे निर्माण करेल विधि विधान मुजब ए अखाड़ाओनुं जतन करे छे। महाशिवरात्रिना मेळा दरमियान आ पंथोना अन्य स्थळे वसता नागाबावाओनुं जूनागढ़मां पोतपोताना अखाड़ाओमां आगमन थाय छे। जाणकार सूत्रोना जणाव्या मुजब कदी जाहेरमां न आवता आ नागा साधुओ शिवरात्रि उपर अचूक जूनागढ़ आवे छे। आ क्षेत्रमां गळाडूब बनेला जाणकारोनी मत मुजब शिवरात्रि उपर काशी, हरिद्वार, नास्की, त्र्यंबक अने नेपाळ जेवा स्थळोए आखुं वर्ष आकरी तपश्चर्या कर्या बाद ए पावनकारी तीर्थधामोमांथी नागा बावाओ गीर तळेटीमां आवी जाय छे अने पोतपोताना अखाड़ाओमां बिराजमान थई भाविकोने दर्शन आपे छे। महाशिवरात्रिनी मधराते सरघस पूरुं थया बाद मृगीकुंडमां स्नान करीने पछी आ साधुओ पोताना मूळ स्थाने सीधावी जाय छे। नागा साधुओं के प्रमुख अखाड़े। भारत की आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। इन प्रमुख अखाड़ों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, श्री निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इनमें दिगंबर, साधु, महंत व महामंगलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर व उदयपुर में हैं। 2. श्री जूनादत्त या जूना अखाड़ा। यह अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय है। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती है। 3. श्री महानिर्वाण अखाड़ा।
यह अखाड़ा 621 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार झारखंड के बैजनाथ धाम में हुआ था, जबकि कुछ इसका जन्म स्थान हरिद्वार में नीलधारा के पास मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर और कनखल में है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारी सेना के कब्जे से छुड़ाया था। 4. श्री अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया। इनके इष्ट देव भगवान गणेश है। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में भी है। 5. श्री आह्वान अखाड़ा। यह अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ और 1603 में पुनः संयोजित किया गया। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है। स्वामी अनूपगिरी और उमरावगिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से है। 6. श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा 895 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ था। इसका केंद्र वाराणसी में है। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में भी है। 7. श्री पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई थी। इनकी इष्ट देव गायत्री है और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्यों में चारों पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु व महामंगलेश्वर शामिल है। परंपरानुसार इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में है। 8. श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा ईस्वी 866 में अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इनके संस्थापक पीर शिवनाथ जी है। इनका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इनमें 12 पंथ है। यह संप्रदाय योगिनी कोल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबक कमठिका नाम से प्रसिद्ध है। 9. श्री वैष्णव अखाड़ा। यह बालानंद अखाड़ा ईस्वी 1595 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव व वैष्णव साधुओं में पहले स्नान कौन करे, इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत पेशवाजी ने यह झगड़ा मिटाया। उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के नजदीक चक्र तीर्था पर स्नान किया। 1932 से ये नासिक में स्नान करने लगे। आज भी यह स्नान नासिक में ही होता है। 10. श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। इस संप्रदाय के संस्थापक श्री चंद्र आचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु, महंत व महामंगलेश्वरों की संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं शाखा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहेबगंज, मुल्तान, नेपाल व मद्रास में है। 11. श्री उदासीन नया अखाड़ा। इसे बड़ा उदासीन
अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इनके प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में है। 12. श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विनिमय करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इनमें सांप्रदायिक साधु, महंत व महामंगलेश्वरों की संख्या बहुत है। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। 13. निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। इस अखाड़े की मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में है। पुराने समय में इसकी अनुयायियों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दिलाई जाती थी। भवनाथ मेळो, महाशिवरात्रि, गिरनार, जूनागढ़।